sent out of your mobile to the servers if you have found. Prime Minister Narendra Modi co-chairs 17th India-ASEAN Virtual Summit. Addressing the summit, Prime Minister says ASEAN is centre point of India's Act East policy. Prime Minister Narendra Modi to unveil life-size statue of Swami Vivekananda at campus of Jawaharlal Nehru University via video conferencing. Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank to be present on the occasion. Finance Minister Nirmala Sitharaman announces 2.65 lakh crore Atmanirbhar Bharat package 3.0 to boost the economy. Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana launched to create new employment opportunities during COVID recovery phase. Additional 10,000 crores allocated for Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Government launches second tranche of emergency credit guarantee scheme for stressed sectors. 26 stressed sectors to benefit from the scheme. 18,000 crore additional outlay for Pradhan Mantri Awas Yojana. 30 lakhs new housing units to be created. 78 lakh new jobs to be created. Union Home Minister Amit Shah addresses gatherings of village heads of 3 border districts, Kutch, Banaskantha and Patan in Gujarat's Kutch district. Home Minister inaugurates an exhibition comprising stalls of government schemes and institutions. DD News gets award for promotion of water conservation at National Water Awards 2019. Jal Shakti Samachar awarded first prize for the best TV show. Speaking at the occasion, Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat highlights the need for collective efforts in the direction of water conservation. Global COVID-19 cases rise to 5 crore 24 lakh with 12 lakh 88,000 casualties. Coronavirus continues to batter United States and Brazil the most. Sweden imposes ban on sale of alcohol after wake of surging COVID-19 cases. Tokyo Olympic organizers say athletes won't have to isolate for 14 days on arrival. IOC President Thomas Bach is confident next year's Olympics in Tokyo will be within a safe environment for all. Good evening and welcome to this bulletin. I'm Shubhendu Ghosh. Prime Minister Narendra Modi, along with Prime Minister of Vietnam Nguyen Xuan Phuc, co-chaired the 17th ASEAN-India Summit today. The leaders of all 10 ASEAN member states are taking part in this virtual summit. Addressing the summit, Prime Minister said ASEAN is the centre point of India's Act East policy. He said a cohesive and responsive ASEAN is needed for security and growth in the region. हम मानते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए एक कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान आवश्यक है। भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फिजिकल, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरीटाइम हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। And Prime Minister Narendra Modi will today unveil life-size statue of Swami Vivekananda at the campus of Jawaharlal Nehru University via video conferencing. Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank will also be present on the occasion. The philosophy and the mission of Swami Vivekananda beckon the youths of the country even today. India feels proud to have had such a great personality who continues to inspire millions across the world.
And Prime Minister has time and again said ideals of Swami Vivekananda are as relevant today as they were during the life and times of Swamiji. Several times, Prime Minister has emphasized that serving the masses and empowering the youth of the nation strengthens the country physically, mentally and spiritually, as well as enhancing the global image of the nation. Prosperity and power of India reside in its people, and therefore empowering all alone will take the nation towards achieving the solemn goal of a self-reliant India. And Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, while addressing a press conference, said 28 states and union territories have been brought under One Nation, One Ration Card initiative. It now covers 68.6 crore Indians. Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0, some of the announcements which were made are seeing very good progress. And the first one I take there is about the One Nation, One Ration Card, in which interstate portability has been achieved in 28 states and union territories. They are all under the national portability of ration cards now, and from 1st September they are actually effectively on in terms of giving interstate portability. And how many people does it cover? 68.6 crore beneficiaries are now opting for lifting their food grains from any of the FPS stores of their choice in any of the 28 states or union territories. And Finance Minister further informed that the economy has staged a strong recovery with the growth in GST collections, bank credit, FDI inflows, along with other indicators. And talking on stimulus package to boost the coronavirus hit economy, Finance Minister said that an Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana being launched to incentivize employment opportunities during COVID recovery phase. The new scheme, which we are now calling as Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, is being launched so that we incentivize creation of new employment opportunities so that the recovery phase benefits from it. What does this mean? It means that every EPFO registered establishment, those registered establishment, if they take new employees who never were covered by EPFO earlier, if they take them on, or if they bring in employees who had lost their jobs between 1st March 2020 and 30th September 2020, even they will be counted as new employees, although they may have an EPFO number earlier. Both will benefit from this. Bank credit year-on-year growth improved by 5.1% as of 23rd October 2020. Of course, markets, you're watching, markets are at record high. Record market capitalization is happening. Net investments, FPIs, is positive, and the reserves like never before of foreign exchange is at $560 billion. Union Home Minister Amit Shah has said that all villages across the border will be provided the basic amenities to check the migration. Inaugurated Sarhad Vikas Utsav 2020 at Dordo in Kutch district of Gujarat today. Shah said borders will be safer when people living there will have all basic facilities and amenities for a good life. देश की पूरी भू सीमा जहां पर लगी है, सब जगह पर इसे ऐसे सीमांत विकासोत्सव करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है और आगे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले। इस विकास उत्सव का उद्देश्य है कि सीमावर्ती गांवों में हमारे जो नागरिक रहते हैं उनको इतनी ही सुविधा मिले जितनी अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के नागरिकों को मिलती है। उनको किसी भी प्रकार से विकास से पीछे न रहना। Home Minister also inaugurated an exhibition organized to showcase developmental works undertaken
and completed in border areas in encompassing Kutch, Banaskantha, Patan districts. Sarhad Vistar Vikasotsav 2020 is aimed to address the problems related to health, education, road connectivity in remote border villages so that the standard of living in such areas can be improved considerably. And we now take you live to BJP press conference. बड़े ही भारी मन से ये प्रेस वार्ता हो रही है और मैं एक बात कहूंगा कि दो प्रमुख मुद्दे इस प्रेस वार्ता में मैं उठाने जा रहा हूं। पहला, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कानून का राज ध्वस्त हो गया है, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता गोकुल जना को मार दिया गया है और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये फिर से टीएमसी का गुंडा राज है। और इसके साथ साथ दुख की बात यह है कि इन्होंने एक गलती कर दी। जो समाचार में सूचना आई है, टीएमसी के ही एक पंचायत सदस्य थे, उनके पति को हो रखा। ये 62 वर्षीय भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी गलती केवल इतनी है, इन्होंने ये कह दिया कि ये आपके जो पति हैं ये क्वारंटीन में रहें कि और लोग संक्रमित ना हो जाए, और इस दोष की वजह से उनको मार दिया गया। दूसरा, हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, उनके ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है। जहां पे संविधान का राज होना चाहिए, वहां पे सत्ता के साथ किस तरह से बैठे रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए खूनी खेल खेला जा रहा है। और कल ही की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, एक बड़ा संदेश दिया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारा सामना नहीं कर सकते और वो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं। ये बेहद ही दुखद है कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप लड़ नहीं सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की कर्मठता के सामने आप कहीं खड़े नहीं होते हैं, और इसलिए आप एक नहीं 115 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी हत्या पश्चिम बंगाल में कर दी गई है। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कही थी जो बहुत प्रमुख है, जिससे हर देशवासी और पश्चिम बंगाल का नागरिक भी सहमत होगा कि लोकतंत्र में सत्ता में रहने के लिए मौत का खेल नहीं खेलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता अपना मन बना चुकी है। बदलाव की हवा पश्चिम बंगाल में चल चुकी है, और इसी वजह से बौखलाहट में डरी हुई दीदी निर्दोष नागरिकों के खून की होली खेल रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से केवल एक चीज पूछना चाहता हूं। ममता जी, आप मुख्यमंत्री केवल टीएमसी कार्यकर्ताओं की नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री हर नागरिक की हैं जो उस प्रदेश में रहता है। अगर किसी ने आपके लिए वोट नहीं किया, अगर किसी नागरिक ने आपका विरोध कर दिया,
तो उसको क्या जान से हाथ धोना पड़ेगा? हम सब जानते हैं कि आप रोहिंग्या, जो कि भारतीय नागरिक भी नहीं है, उनसे बहुत प्यार करती हैं। अगर वो घुसपैठ भी करते हैं तो आप कहती हैं ये वापस नहीं जाएंगे। और जो भारतीय नागरिक हैं, जो पश्चिम बंगाल की भूमि में रहते हैं, उन पे आपके कार्यकर्ता जानलेवा हमला करते हैं। ये किस तरह का कानून राज है? और ये चुप्पी क्यों? ये चुप्पी क्यों ममता बनर्जी? आपको बताना होगा कि अगर नागरिक मारा जाता है तो क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो दूसरी तरफ देखेगा और टीएमसी के कार्यकर्ता जंगल राज फैलाएंगे? और इसीलिए जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को संबोधित किया तो एक बहुत बड़ा संदेश हर नागरिक के पास गया। संदेश था, हम पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे, लेकिन अपनी विचारधारा की ताकत से। हम ईमानदारी से जनता की सेवा करके जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस कर्मठता से कार्य कर रहे हैं, जब उन्होंने हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता को सुना, एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। हम किसी से डरेंगे नहीं, चाहे ममता बनर्जी कितना प्रयास कर लें कि वो हमें डराएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एक बड़ा मुद्दा इस प्रेस वार्ता में मैं उठाना चाहूंगा। क्या कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में आज गुंडा राज है, और सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा है पंचायत के चुनाव के दौरान कि ऐसा प्रतीत होता है पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हमें याद करना चाहिए, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संविधान को बचाने की शपथ ले रखी है, लेकिन यही ममता बनर्जी कहती हैं जो संसद में पारित कानून है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लागू नहीं करेंगे। क्या यह संविधान को तार तार करना नहीं हुआ? और ऐसा डर क्या है ममता बनर्जी जी कि हमारे सर्वोच्च नेता जब पश्चिम बंगाल जाने की बात करते हैं तो उनके मूल अधिकारों का हनन करते हुए आप उन्हें पश्चिम बंगाल में घुसने भी नहीं देती हैं। आपने लोकसभा चुनाव में भी यही किया। हमारे वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनको वहां रैली करने का, रथ यात्रा करने की अनुमति नहीं दे रही थी। हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां जाना चाहते थे, उनके साथ भी आपने यही बदसलूकी करी। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि यह उचित नहीं है। सबसे दुखद बात है किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अगर आपकी बात से कोई सहमत नहीं है तो आप उसको मार डालेंगे। 115 कार्यकर्ता मैंने बताया, और बड़े भारी मन से फिर से कहूंगा, हमारा छोटा भाई था बीजेपी का कार्यकर्ता दुलाल कुमार। मेरे पास, मेरे हाथ में एक तस्वीर है, एक इलेक्ट्रिक पोल से लटका हुआ उसका शव मिला। और किस तरह से लोकतंत्र को मारा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, इसका उदाहरण मैं अब आपको कुछ तथ्यों के साथ रख रहा हूं। ये एक उदाहरण है, ऐसे 115 मामले हैं। 28 वर्षीय युवक, उसका पार्थिव शरीर जो है वो लटका हुआ मिला इस हालत में। 20 दिन तक एफआईआर, जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो
ललिता कुमारी का केस है तो तुरंत दर्ज होनी चाहिए, 20 दिन तक एफआईआर नहीं होती है। 24 घंटे के अंदर विवेचना को बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है यह आत्महत्या का मामला है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, मैंने खुद याचिका लगाई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें पश्चिम बंगाल की सरकार से जवाब मांगा। और ऐसे ही त्रिलोचन महतो, शक्तिपत सरदार, मैंने आज बताया जिस तरह से गोकुल जना जी, इन सब की हत्या करवाई जा रही है, कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि ममता बनर्जी बहुत सहमी हुई हैं। जो सत्ता से उनका प्यार है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है कि सत्ता ना चली जाए। और कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सत्ता ममता जी कभी आएगी जाएगी, लेकिन जनता की सेवा सर्वोपरि है। ये जो सांप्रदायिक राजनीति आप कर रही हैं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी और हमारा हर कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से विरोध करता रहेगा। कोई नहीं भूला है कि आपने कहा था जो जय श्री राम का नारा लगाएगा उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। संवैधानिक अधिकार है और इसको आप छीन नहीं सकते। आप जनता की चमड़ी क्या उधेड़ेंगी ममता जी? जनता ने मन बना लिया है, आपकी सांप्रदायिक चादर पूरी तरह से उधेड़ देगी पश्चिम बंगाल की जनता, ये याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान न करना, एनआरसी के मामले में हमने देखा था। राज्यपाल का पद जो संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा पद है, किस तरह से आपने उनके साथ व्यवहार किया है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी, आपने उन्हीं पे आरोप लगा दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तो खुद ही एक प्रतिष्ठित वकील है, संविधान की रक्षा करने का दायित्व उनका भी है और आपका भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप संविधान को ही तार-तार कर रहे हैं। आज इतना जरूर कहूंगा, आप एक खूनी राजनीति कर रही हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही हैं। जिस तरह से टीएमसी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और आप समझती हैं कि आपकी बाजुओं में बहुत जान है, तो मैं इतना ही कहूंगा, बिस्मिल अजीमाबादी जी का शेर है जो कहता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ममता बनर्जी, प्रदेश की सेवा करिए। अगर आपकी आंखों के सामने संविधान तार-तार होगा, अगर कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के मारा जाएगा, मैं समझता हूं आप दूसरी तरफ नहीं देख सकती, क्योंकि आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी। There was a live press conference of the Bharatiya Janata Party, BJP accusing the Trinamool government of West Bengal and Mamata Banerjee for the string of political violence against the BJP workers in West Bengal. Moving on, after conducting successful assembly election in Bihar and by polls across 11 states, Chief Election Commissioner Sunil Arora has thanked people of Bihar for coming out in large numbers and casting their ballot. Chief Election Commissioner thanked the entire Election Commission team as well for holding free and fair polls amid the COVID pandemic. इस बार का बिहार का असेंबली का चुनाव और जो कुछ और असेंबलीज के चुनाव हुए, वो सारे एक तरह से कोविड के साए में हुए। लेकिन उसके बावजूद हमारे सभी अधिकारियों ने एकजुट होके जिस प्रकार से कार्य किया, यहाँ पे बिहार के वोटर को जिन्होंने सारे चुनाव को सफल बनाने में
सबसे अहम रोल एक तरह से अदा किया, भूमिका अदा की बाय कमिंग आउट इन ग्रेटर नंबर्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए। And with that, we conclude this bulletin. Namaskar.